Modi. Welcome back to my channel. Today is very special day, International Eye Donation Day. आज के दिन नेत्रदान दिन मनाया जाता है। नेत्रदान हम बनने के बाद ही कर सकते हैं। इससे नेत्रहीन लोगों के जीवन में उजाला आता है। हम मरने के बाद इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इसलिए सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। चलते हैं मजेदार वीडियो की ओर। World Eye Donation Day. Hello everyone, on this beautiful occasion I am here to give a speech on eye donation is the best donation. So let me start my speech by giving a awesome quote on eye donation. The eye sees a thing more clearly in dreams than imagination awakes. Leonardo da Vinci. So I have a question before going deep into eye donation. Do anyone wish to be blind just for a day? Can anyone live without eyesight just for a day? Maximum of use won't even dare to think so, because we love to see different kind of things and explore them. We people don't like someone to tie our eyes for a long time and say us to act as blind person. Even we hate to be locked in a closed dark room. People say I love darkness, but practically we can't live without seeing anything in this world. I can only imagine things like how would it be if I would be blind. This earth consists of things both big and small but colorful. We see shapes and we recognize people or anything else because of our eyesight. The colorful things distinguish itself from another and therefore they have their own identities. However, not everyone are lucky to have this precious thing. We will understand and realize only if you are forced to live a life of a blindness. Of course, many people are blind and they live in their own world of darkness. They definitely have a chance of having eyesight. That is through eye donation. Eye donation is the noblest thing because it opens up a new world of light for the blind. All we need to do is we should approach eye donation center and pledge when we are alive to donate our eyes after we die.
Visually impaired people feel that their life is incomplete as they can just touch, feel, and smell things but can't see it. Statistics show that there are 15 million blind people in India, and out of these, 6.8 million people are suffering from corneal blindness. The cornea is a clear tissue covering the front of the eye. It is a focusing element of the eye. The vision is dramatically reduced or lost if the cornea becomes cloudy. This loss of the vision is referred to as corneal blindness. Several corneal diseases affect children and adults and can affect both eyes, making them blind. When the eye is affected only by corneal diseases, replacing this part will restore the vision in such people. Corneal replacement is an easy and simple surgery and is performed at several eye hospitals in the country. Significance of eye donation. Donated eyes can be used to restore vision in people who are suffering from corneal blindness. The front, clear, and transparent tissue of the eye called as cornea can be used to restore vision in a corneal blind person. The other portion of the eye are also used for research and training purposes to develop cures for some of the common eye diseases. From each pair of donated eyes to blind people will get vision and light into their life, thus making it more divine. Eye donation is an act of donating one's eyes after his death. It is an act of charity purely for the benefit of the society and it is totally voluntary. The eye donation of the deceased can be authorized by the next of kith and kin even if the deceased did not pledge to donate his eyes before death. Age or systematic illness such as diabetes or hypertension, heart disease, kidney disease is not barriers for eye donation. The cornea of a person are unaffected even if they have undergone any eye surgeries in the past and hence will be useful can be transplanted in others. There are widespread social awareness programs and activities conducted across the country to impart the significance of eye donation and its usefulness to the visually impaired people. Till date, medical researchers and scientists are working on developing artificial cornea. But till that time, donating the eyes will be the best gift ever for a blind person suffering from corneal blindness. Thank you. नमस्ते. आज 10 जून विश्व दृष्टिदान दिवस आणि आत्ता या क्षणी तुम्ही दृष्टीहीन होणार आहात. हां तुम्ही आंधळे होणार आहात. काय विचार करताय? काय बोलते ही मुलगी? मन तरी नक्की डगमगलं असेल आणि डगमगणार का नाही हो? आपण आंधळे नाहीत, परंतु याच डोळ्याने पाहिलेली आंधळ्यांची स्थिती, आंधळ्यांचं जग कसं असतं याची जाणीव असेलच. आता पहा ना, आपल्याला विचार करून एवढं वाईट वाटतंय तर प्रत्यक्ष त्यांची स्थिती कशी असेल? आता तुम्ही म्हणणार, हो वाईट तरी खूप वाटतंय, पण आम्ही काय करू शकतो? आम्ही ईश्वर तर नाही ना? हो बना ना ईश्वर. अख्ख्या जगाचे नाही तर एका नेत्रहीन व्यक्तीचे ईश्वर बना. हो, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या डोळ्यातील कॉर्निया काढून एका नेत्रहीन व्यक्तीला दृष्टी मिळू शकते. आता तुमच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले असतील की कॉर्निया म्हणजे काय, नेत्रदान कुठे व कसे करावे. माझ्याकडे तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आहे, फक्त तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. सर्वप्रथम दृष्टिदान म्हणजे शरीरातील पूर्ण डोळे काढणे असे नाही. दृष्टिदानासाठी मृत व्यक्तीच्या डोळ्यातील कॉर्नियाचा उपयोग केला जातो. कॉर्निया म्हणजे डोळ्याच्या बाहुलीचा पारदर्शक पडदा होय. नेत्रदान करण्याचे 2 मार्ग आहेत. पहिला मार्ग, नेत्रदान करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या मृत्यू अगोदर आय डोनेशन फॉर्म भरावा लागतो. त्याच्या मृत्यूनंतर या फॉर्मच्या आधारे त्याचे डोळे काढण्यात येतात. दुसरा मार्ग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आणि त्या व्यक्तीने आय डोनेशन फॉर्म न भरल्यास कुटुंबातील एखादा सदस्य त्याचे डोळे दान करू शकतो. नेत्रदान करण्यासाठी मृत्यूनंतर 6 तासा अगोदर मृत्यूची सूचना हॉस्पिटल, आय बँक किंवा प्रमुख सरकारी नेत्र विशेषज्ञांमध्ये संपर्क साधावा. बालकांपासून वृद्धांपर्यंत कुणीही नेत्रदान करू शकतं. नेत्रदानास कुठल्याही धर्माचा विरोध नाही. ज्यांना चष्मा आहे ते सुद्धा नेत्रदान करू शकतात. आणि तसेच ज्यांना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दमा इत्यादी विकार असतील
ते सुद्धा नेत्रदान करू शकतात. परंतु एड्स, हिपॅटायटिस, सेप्टिसिमिया, ब्लड कॅन्सरचे रुग्ण नेत्रदान करू शकत नाही. पण हां, वैज्ञानिकांच्या प्रयोगासाठी यांचे नेत्र उपयोगी पडतात. एकंदरीत कोणाचेही नेत्र वाया जाणार नाहीत. प्रत्येक वर्षी 1.5 लाख लोकांची मृत्यू होते आणि जवळजवळ भारतात 1.25 करोड लोक दृष्टीहीन आहेत. त्यापैकी 3 लाख लोक या प्रत्यारोपणाचा लाभ घेऊ शकतात. पण काही लोक अंधविश्वासात बसून नेत्रदान करत नाहीत. खास त्यांच्यासाठी हात जोडून विनंती आहे की प्रत्येक धर्मात नेत्रदानाला फार महत्त्व आहे. म्हणून कोणत्याही अंधविश्वासात न पडता नेत्रदान करा आणि मृत्यूनंतरही आपले डोळे जिवंत ठेवून हे जग पहा. आणि हो, तुमच्या डोळ्यांची काळजी घ्या. दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लाए हैं नेत्रदान पर हमारे द्वारा लिखित यह निबंध। आप इसे ज़रूर पढ़ें। नेत्रदान एक ऐसा दान है जिसके ज़रिए हम दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। नेत्रदान हम मृत्यु के बाद कर सकते हैं। भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जो नेत्रहीन हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे नेत्र नहीं लगाए जा सकते क्योंकि उनमें नेत्र तंतुओं की कमी होती है, लेकिन कुछ लोग दूसरों के नेत्र लगवाकर अपने जीवन को नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जी सकते हैं। वास्तव में नेत्रदान ज़रूर करना चाहिए। नेत्रदान करने के लिए बहुत सारे लोगों का हम कर सकते हैं। कुछ लोग अपार धन संपत्ति दान करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह से अपने शरीर के अंगों का दान करते हैं। नेत्रदान का अपने आप में बड़ा ही महत्व है। नेत्रदान हम सबसे बड़ा दान कह सकते हैं क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को अगर हम रोशनी प्रदान करें तो इससे बड़ा बलिदान, इससे बढ़कर पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता। आज हम देख रहे हैं नेत्रदान करने के लिए भारत के लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका में कई सारे लोग नेत्रदान करते हैं। श्रीलंका कई अन्य देशों को भी नेत्रदान करती है। उस देश से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। श्रीलंका भले ही छोटा सा देश है, लेकिन नेत्रदान में वह आगे है। हमारे भारत देश के अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान करें तो नेत्रहीन व्यक्ति की काफ़ी मदद हो सकेगी। यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो इसके लिए वह अपने रिश्तेदारों, आस पड़ोस में यह जानकारी दे सकता है कि वह नेत्रदान करना चाहता है। मृत्यु के पश्चात उन रिश्तेदारों के द्वारा उस मृत व्यक्ति की नेत्रदान की जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद केवल 3 से 4 घंटे के अंदर नेत्रदान की जा सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा समय बाद भी की जा सकती है। मृत व्यक्ति के नेत्रों को दान करने के लिए उसके रिश्तेदारों या आस पड़ोस वालों की चाहिए कि मृत्यु के तुरंत बाद डॉक्टरों से संपर्क करें जिससे सही टाइम में उस मृत व्यक्ति के नेत्रों को दान कर सके। नेत्रदान कोई भी कर सकता है। बस नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी जैसे कि एड्स आदि नहीं होनी चाहिए। नेत्रदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है। नेत्रदान करने के लिए आप नेत्र संबंधी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं और वहां पर यह सूचना भी दे सकते हैं कि आप मृत्यु के पश्चात में नेत्रदान करेंगे। आपको एक कार्ड प्राप्त होगा जो आप हमेशा अपने पास रखिए। यदि आप नेत्रदान करना चाहते हैं तो यह अति आवश्यक है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में यह बात कहें जिससे सभी लोग आपकी तरह नेत्रदान करने के प्रति जागरूक हो सके। इस तरह से हम समाज को जागरूक करके अधिक से अधिक नेत्रदान कर सकते हैं और जीवन में दूसरों को भी खुशी देने वाला कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।